پنجاب میں انتخابات کا دنگل، چنیوٹ میں انتخابی سرگرمیاں شروع۔ سیاسی جماعتوں کے رہنما کاغذات نامزدگی جمع کرانے اور وصول کرنے کے لیے ریلیوں کے ہمراہ ریٹرننگ افسران کے پاس پہنچے۔ پنجاب اسمبلی کی 4 سیٹوں کے لیے 66 امیدواروں نے کاغذات وصول کیے۔ پنجاب میں عام انتخابات کا اعلان، چنیوٹ میں سیاسی جماعتوں کے رہنما کاغذات نامزدگی جمع کرانے اور وصول کرنے کے لیے ریلیوں کے ہمراہ ریٹرننگ افسران کے پاس پہنچے۔ 4 صوبائی سیٹوں کے لیے 66 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ پی پی 94 کے لیے 15 اور پی پی 95 کے لیے 19 افراد نے کاغذات وصول کیے۔ پی پی 94 سے ماہر حالت اقصی حیات لالی اور کیسر عباس، جبکہ پی پی 95 سے سابق ایم پی اے پیپلز پارٹی سید حسن مرتضیٰ نے کاغذات جمع کرائے۔ سارے اپنے دوستوں کا شکر گزار ہوں۔ یہ ہمارا الیکشن ہے، ہم نے اس الیکشن میں انتشار کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے انارکی کا مقابلہ کرنا ہے، ہم نے افراتفری کا مقابلہ کرنا ہے۔ ہم انشاءاللہ تعالی اس کو پرامن بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 14 مارچ شام 4 بجے تک ہے۔ بعد ازاں سکروٹنی کا عمل شروع ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41 چنیوٹ۔ پنجاب میں عام انتخابات جنگ میں صوبائی اسمبلی کے امیدواروں کی جانب سے کاغذات نامزدگی حاصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ 7 حلقوں میں 170 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ پنجاب میں انتخابات کا اعلان، جنگ میں تیاریوں کا آغاز کر دیا گیا۔ صوبائی اسمبلی کے 7 حلقوں کے امیدواروں نے کاغذات نامزدگی وصول کر لیے۔ الیکشن کمیشن کی جاری کردہ تفصیلات کے مطابق 170 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے، تاہم کسی امیدوار نے کاغذات نامزدگی جمع نہیں کرائے۔ پی پی 124 میں 14 اور پی پی 125 میں 30 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ جنگ کے شہری حلقے پی پی 126 میں 40، جبکہ پی پی 127 میں 17 اور پی پی 128 میں 39 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی وصول کیے۔ پی پی 129 میں 22 اور پی پی 130 میں 8 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی آخری تاریخ 14 مارچ شام 4 بجے تک ہے۔ 15 مارچ کو امیدواروں کی ناموں کی لسٹیں جاری کی جائیں گی۔ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ مزید آگے بڑھے آپ کو بتائیں، سمندری بھوانا اور لالیاں میں امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ مزید جانیے اس رپورٹ میں۔ سمندری میں بھی انتخابات کی ہلچل، 23 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ پی پی 104 سے عادل پرویز، نصرت پروین اور خرم شہزاد، پی پی 103 سے رانا فاروق سعید خان، رانا بلال فاروق اور محمد اکرم نے کاغذات نامزدگی حاصل کیے۔ محمد ندیم ضیاء، محمد وسیم، صفدر الرحمان، فاروق ارشد اور حافظ محمد سعید نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی حاصل کر لیے۔ پنجاب میں الیکشن کا اعلان، کاغذات نامزدگی وصول اور جمع کرانے کا سلسلہ شروع۔ سلیم بی بی بھروانا نے کارکنان اور سپورٹرز کے ہمراہ کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ اے سی آفس پہنچنے پر ڈھول کی تھاپ پر ان کا استقبال کیا گیا۔ کارکنان نے پھولوں کی بتیاں بھی نچھاور کی۔ سلیم بی بی بھروانا کے کاغذات ریٹرننگ آفیسر شکیب سرور نے جمع کیے۔ لالیاں کے پی پی 93 میں بھی انتخابات کی تیاریاں، امیدواروں کا کاغذات نامزدگی وصول کرنے اور جمع کرانے کا سلسلہ جاری۔ مزید 4 افراد نے کاغذات نامزدگی وصول کیے۔ کاغذات نامزدگی وصول کرنے والوں میں ذوالفقار علی شاہ، سید زاہد حسین، فیصل حیات اور صفدر عباس شامل ہیں، جبکہ امتیاز احمد لالی نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ آخر غریبوں کی سنی گئی، پنجاب کی نگران حکومت نے وہ کر دکھایا جو اس سے پہلے کوئی نہ کر سکا۔ پورے رمضان غریبوں کو مفت آٹا دینے کے فیصلے پر عمل درآمد شروع، 25 شعبان سے آٹے کی فراہمی کا آغاز ہو جائے گا۔ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں سیکرٹری خوراک نے مفت آٹے کی فراہمی پروگرام پر بریفنگ دی۔ کابینہ نے ماہ رمضان میں عوام کو مفت آٹے کی فراہمی کا تاریخ ساز فیصلہ کیا۔ ریلیف پیکج میں 60,000 روپے سے کم آمدن والے خاندانوں کو مفت آٹا ملے گا۔ ایک خاندان شناختی کارڈ کے ذریعے 10 کلو آٹے کے 3 تھیلے لے سکے گا۔ مفت آٹے کے پیکج سے پنجاب کی 90% آبادی مستفید ہو سکے گی۔ مخصوص کریانہ سٹورز، ٹرکنگ پوائنٹس اور یوٹیلیٹی سٹورز پر مفت آٹا دستیاب ہوگا۔ مفت آٹے کی فراہمی کا آغاز 25 شعبان سے کیا جائے گا، جو 25 رمضان المبارک تک جاری رہے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے کہا کہ پروگرام کی کامیابی کے لیے دن رات محنت کرنا ہوگی۔ ادھر ماہ سیام سے قبل ہی فیصل آباد شہر میں 11 جبکہ ضلع میں 19 رمضان بازاروں کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے۔ قائم مقام ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اینڈ پلاننگ کاشف رضا ایوان نے رمضان بازاروں کے لیے ٹینڈرز جاری کر دیے۔ ملت روڈ، اکبر چوک، سوسا روڈ، فیکٹری ایریا میں رمضان بازار لگیں گے۔ رمضان المبارک کی آمد، فیصل آباد کے شہری بھی ماہ مقدس کی تیاریوں میں مصروف۔ افطار کے اہم جز کھجور کی مانگ میں اضافہ، اجوا، مبروک، مضافتی اور ایرانی کھجور شہریوں کی من پسندیدہ اقسام میں شامل ہے۔
शहरियों की जानिब से माह मुकद्दस की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। खजूर जिसके बगैर इफ्तार मुकम्मल नहीं समझा जाता कि कीमतें रमजानुल मुबारक की आमद से पहले ही बढ़ गई हैं, जिस पर शहरी कहते हैं खजूरों की तो बेशुमार इकसाम है, लेकिन कीमतें काफी बढ़ चुकी हैं। खजूरों की तो काफ़ी वैरायटी हैं यहाँ पे, लेकिन सारी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, इतनी ज़्यादा। ईरानी भी है, कलमी भी है और दूसरी भी और भी बहुत सारी वैरायटी हैं, लेकिन महंगी बहुत ज़्यादा हो गई है रेट। नहीं, मैं ख़रीदने लगा हूँ, ईरानी खजूर मैंने ख़रीदनी है। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान शरीफ की आमद है, तो यहाँ तो रमज़ान से पहले ही इन्होंने रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं। खजूरों के रेट्स की बात की जाए तो अजवा 2800, कलमा 1800, ईरानी मबरूम 1200, रिंगरो 960, शरीफा 880, रब्बी 760, मजाफ्ती 650, ईरानी खजूर 440 रुपए फी किलो हो गई है। कीमतों में इजाफे के हवाले से दुकानदार का कहना था कि कीमतें पीछे से बढ़ी हैं। रमजानुल मुबारक की आमद से कबल ही खजूरों की मांग में इजाफा हो गया है। हमारे पास हर किस्म की खजूर की वैरायटी जो सी आ गई है, लेकिन क्या करे हर गाहक तराज करता नजर आ रहा है, लेकिन क्या करे पीछे से महंगी आती है, हम भी आगे सेल करते हैं। पिछले साल की निस्बत जो खजूर थी वो 240 रुपए किलो थी, सब हम 440 में सेल कर रहे हैं कि, लेकिन क्या करे हर खजूर हर गाहक के साथ हम बहस करते हैं। रमजानुल मुबारक में खजूर सहरी और इफ्तारी का अहम जुज़ समझी जाती है। माह मुकद्दस की आमद से पहले ही खजूरों के रेट्स बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से शहरियों के साथ साथ दुकानदार भी परेशान नजर आते हैं। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ मोहम्मद अली नारू, सिटी 41 फैसलाबाद। रमजानुल मुबारक की आमद, महंगाई का जिन आज़ाद, मजदूर तबका ज़ेर अताब। रमजानुल मुबारक में सहर व इफ्तार के लिए परेशान, रोजगार ना होने का शिकवा कर दिया। मजदूर कहते हैं रमजानुल मुबारक की आमद है मगर रोजगार ना होने के बराबर है। रोजगार नहीं मिलेगा तो बीवी बच्चों को सहर और इफ्तार कैसे कराएंगे। रमजानुल मुबारक की आमद फैसलाबाद शहर के मजदूर महंगाई और बेरोजगारी की वजह से परेशान हो गए। मजदूरों का कहना था कि रोजगार नहीं मिलता, महंगाई बढ़ती जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रही रमजानुल मुबारक में सहर और इफ्तार का बंदोबस्त कैसे होगा। एक तो कारोबार नहीं है, एक महंगाई इतनी है कि असं रोजे भी रख सकते हैं कि नौबत ही नहीं है, इन्नी हिम्मत नहीं है, पावर नहीं है कि रोजे रखांगे, तो कारोबार भी नहीं, हुकूमत भी कोई तवज्जो नहीं दे रही है। हाँ जी, महंगाई ने बिल्कुल पागल करता बंदे नूं। बेरोजगारी है, इत्थे दिहाड़ी लगदी कोई नहीं, 8 दिन हो गए वेले जाने आ, तू ये मैनूं दस रोजे रखांगे जो अपने बच्चों नूं पालांगे, असीं तीज दे कपड़े भी लैणे आ। मजदूरों का मजीद कहना था कि 8 रोज से फारिग बैठकर घरों को जाने पर मजबूर हैं। बच्चों का पेट पालना भी मुश्किल हो चुका है। रमजान मुबारक में रोजे रखने के हवाले से परेशानी बढ़ती जा रही है। इन्हां को होनी भी नहीं, कभी तेल घटा देंदे, 10 रुपये घटा के 15-20 वधा देंदे आ। घ्यो आ वो इन्हां ने लिया के 550 तो लिया के फिर 600 तो ले आंदा की है जी। कर्जा पाकिस्तान को पैसा नहीं हैगा, ते जे नहीं हैगा तो घर बह रहे हैं। मजदूरों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि रमजानुल मुबारक में अवाम को महंगाई के तूफान से बचाए और मजदूर तबके के लिए रिलीफ पैकेज जारी करे। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। और यहाँ आपको बताएं, वक्त से पहले गर्मी गंदम का हदफ तौक़्क़ो से कम रहने का इम्कान, 2 मिलियन टन गंदम कम रहने के खदशात पैदा हो गए। कटाई के बाद हतमी नताइज जारी होंगे। ज़राई माहिरीन का मौक़िफ़ है कि रवां बरस गंदम की काश्त भी कम हुई है, जिससे मसाइल बढ़ने का अंदेशा है। अचानक गर्मी बढ़ने ने भी खदशात बढ़ा दिए हैं। टेक्सटाइल मसनूआत खसारे का शिकार, कोई एक भी कसम मुनाफे ना कमा सकी। मुल्क की बरामदात में होमवेयर, नेटवेयर, होस्टी, रेडीमेड सबको खसारे का सामना। पाकिस्तान की सबसे बड़ी गाहक अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, स्पेन, इटली भी मनफी रुझान दिखाने लगे। टेक्सटाइल बरामदात अमेरिका के लिए 27% कम 473 से 345 मिलियन डॉलर पर आ गई। बरतानिया के लिए 24% कम होते 198 से 152 मिलियन डॉलर हो गई। जर्मनी के लिए 35% कम 179 से 117 मिलियन डॉलर। स्पेन में 4% कमी से 121 से 115 मिलियन डॉलर तक आ गई। इटली के लिए 20% कमी 123 से 98 मिलियन डॉलर हो गई। पाकिस्तानी बरामदात मुतबादिल एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन ममालिक के लिए बढ़ने लगी। मकामी कॉटन मार्केट में रुई की कीमतों में मजमूई तौर पर मंदी रही। फीमन रेट 200 रुपए कम होकर 20,000 रुपए पर आ गया। मजीद कमी भी मुतवक्का है। टेक्सटाइल सेक्टर की बहरानी कैफियत की वजह से स्पिनर्स मुहतात खरीदारी कर रहे हैं। सनतकारों का कहना है कि रुई की कीमत महंगाई के बावजूद कम हो रही है। नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स असलम भल्ली ने कहा, कपास की कीमत में कमी हुकूमत के इकदाम से नहीं बल्कि तलब कम होने से हुई है, जो कि काबिल अफसोस है। 60% 50% हमारी इंडस्ट्री बंद पड़ी है, आगे डिमांड है नहीं, लूम्स बंद पड़ी हैं। लोगों की तरजीहात में शामिल है खाना, रोटी, जो शायद खुर्दोनोश है, उनकी कीमतें आसमानों से बातें कर रही हैं। लोगों का खाना तो पूरा हो नहीं रहा, ऊपर से रमजान शरीफ की आमद है। कपड़े जो हैं वो सेकंड तरजीह हो गई या पहली तरजीह, अव्वल तरजीह नहीं रही। टेक्सटाइल मसनूआत के तमाम शोबे, होमवेयर, नेटवेयर,
हाउजरी, रेडीमेड गारमेंट्स सब के सब खसारे में जा रहे हैं। रुई की तलब में कमी की वजह से कीमतों में मंदी भी मुल्क की मौशत के लिए खतरनाक है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शराज भट्ट के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41, फैसलाबाद। वासा की जानिब से सिक्योरिटी गार्ड्स और ड्राइवर्स समेत 300 वर्कर प्राइवेट कंपनी को ठेके पर देने का मामला। CBA वर्कर यूनियन का MD ऑफिस के सामने एहतजाज, इलामती धरना भी दिया। वासा की जानिब से 300 डेली वेजेस मुलाजमीन को प्राइवेट कंपनी के सपुर्द करने पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज बन गए। CBA वर्कर यूनियन ने MD ऑफिस के सामने अलामती धरना दिया। सदर CBA यूनियन मियां मकसूद का कहना था कि प्राइवेट कंपनी के साथ डेली वेजेस मुलाजमीन का 30,000 रुपये माहाना पर मुआहिदा किया जा रहा है। 1.5 अरब रुपया हमने वापड़ा का देना है। उन हालात में ये जो वर्क चार्ज मुलाजमीन है उनको करप्शन करने के लिए एक ठेकेदार को दे रहे हैं, जबकि वर्क चार्ज मुलाजमीन को 22,000 रुपये माहाना दे रहे हैं और ठेकेदार को 30,000 रुपये माहाना पे उसे 300 बंदों का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और उसकी हम शदीद मुखालफत करते हैं और हमारा मुतालबा है कि कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया जाए और वर्क चार्ज मुलाजमीन जो हैं इनको रेगुलर किया जाए। सेक्रेटरी CBA यूनियन बिनियामीन सहोत्रा बोले कि मुलाजमीन को प्राइवेट कंपनी के सपुर्द करने से करप्शन के दरवाजे खुलेंगे। हुकाम को प्राइवेट कंपनी से किया गया मुआहिदा खत्म करने के लिए 24 घंटे की मोहलत दी है। वर्क चार्ज को महकमा जो है वो 24,000 दे रहा है और जो ठेकेदार के साथ मुआहिदा किया गया वो 30,000 45 रुपए का मुआहिदा किया गया है। ये कैसी मिली भुगत है, ये क्या लेन देन है, हमें समझ नहीं लग रही। और जो सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलर किए हैं वो महकमा क्या इंतज़ार कर रहा है कि वो यूनाइटेड नेशन में जाएं, कहाँ जाएं? ये अदालत को फॉलो करें और CBO की जो बात है उसको फॉलो करें। CBA यूनियन ने कल तक प्राइवेट कंपनी से मुआहिदा खत्म न करने की सूरत में वासा के तमाम दफातर में एहतजाज करने का ऐलान किया है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ वकास अहमद बेग, सिटी 41, फैसलाबाद। लायंस क्लब जंग की जानिब से इफ्लाही कामों का सिलसिला जारी। अंजुमन नाबीना मरकज में मस्जिद की तामीर का काम मुकम्मल। रक्षा मॉडल स्कूल में बिनाई से महरूम बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम की। लायंस क्लब जंग की जानिब से फलाही कामों का सिलसिला जारी है। लायंस क्लब के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वसीम शेख ने जंग का दौरा किया और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया। इस मौका पर लायंस क्लब के ओहदेदारान और मेंबरान की बड़ी तादाद शरीक हुई। अंजुमन नबीना मरकज में मस्जिद की तामीराती काम मुकम्मल होने पर इफ्तिताह किया। रक्षा मॉडल स्कूल में बिनाई से महरूम बच्चों को तालीमी सहूलियात फराहम की। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर वसीम शेख का कहना था कि लायंस क्लब फलाही कामों में दिलजमी से खिदमत सर अंजाम दे रही है। लाइनिज़म का एक रोशन मुस्तकबिल सितारा है और मैं देख रहा हूँ कि जिस तरीके से ये प्रोजेक्ट चल रहा है जंग इंशाअल्लाह ताला आने वाले सालों में बहुत उभर कर इंशाअल्लाह ताला सामने आएगा। दूसरी जानिब गिलानी फार्म हाउस पर गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों को मुफ्त हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग समेत दीगर सहूलियात फराहम की गयी। इस मौका पर सैयद गुलाम रबानी, सैयद फिरोज गिलानी, सैयद बासित अली गिलानी और सैयद हसन अली गिलानी ने मेहमानों को वेलकम किया और इनके लिए एजाजी तकरीब का एहतमाम किया। लायंस क्लब के ओहदेदारान और मेंबरान को शील्ड से भी नवाजा गया। कि लायंस क्लब ने जो खिदमत की है इस गांव के अंदर आके, यहाँ पे पानी का बड़ा मसला है, यहाँ पे फिल्टर प्लांट लगने चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से और इससे ही बेहतरी आएगी हेपेटाइटिस बी सी। लायंस क्लब की खिदमत को शहरियों की जानिब से खूब सराहा गया। शहरियों का कहना था कि इस तरह के फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41, जंग। आगे बढ़े और आपको बताएं, जंग गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख्वातीन में रंगारंग कल्चरल डे की तकरीबात का इनेकाद। कमिश्नर सिल्वत सईद और डेप्यूटी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्यासी ने खुसूसी शिरकत की। जंग गवर्नमेंट कॉलेज बराए खवातीन में रंगारंग कल्चरल डे की तकरीबात का एहतमाम किया गया। कमिश्नर सरबत सईद और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने कल्चरल डे की तकरीबात में खुसूसी शिरकत की। ADC आर तारिक भट्टी, ADC जी अहमद रजा सरा, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज नईम रशारी और DO इंफॉर्मेशन रियाज मारत भी हमरा थे। तालबात ने चारों सूबों की सकाफत को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ टेबलोज पेश किए। कमिश्नर सरबत सईद ने तालबात की परफॉर्मेंस को सराहा और सहूलियात की फराहमी की यकीन दहानी करवाई। उनका कहना था कि तालबात को तालीमी सहूलियात की फराहमी के लिए हुकूमत पंजाब की जानिब से भरपूर कोशिशें जारी हैं। बच्चियों को एक भरपूर मौका मिला कि यहाँ पर आकर अपनी सलाहियतें जो हैं वो उनको शो कर सकें। यहाँ पर आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है और ख़ास तौर पे ख़वातीन के हवाले से जी मैं खुद भी बहुत चैम्पियन हूँ विमेन एम्पावरमेंट की और मैं चाहती हूँ कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तकरीब के अख्ताम पर कमिश्नर सरबत सईद और डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करने वाली तालबात को इनामात से नवाजा। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41, जंग। और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।